we will have Dr. Shruti Tolambia. She is a consultant anesthesiologist and critical care in Indore, Madhya Pradesh. And before she starts about her knowledge on Agnihotra and its impact on human health, let us learn what is Agnihotra. अग्निहोत्र है क्या, कैसे करते हैं इसको, कितना सुलभ है या कठिन है क्या करना, तो इसको आराम से आज करेंगे और देखते हैं साथ चल के कि कहाँ तक सीख पाते हैं. You can then pose some questions. I'll take 15 minutes. So let us start with Omkara. Omkara bindu sanyuktan nityam dhyayanti yoginah kamadam mokshadan chaiva Omkaraya namo namah. Trivara Om. Let us all chant Om thrice. Breathing in and breathe out. And now we breathe in for chanting Om. Om. A deeper breath in. Om. A deeper breath in. Om Namah Pranavarthaya Shuddha Jnanaikamurtaye Nirmalaya Prashantaya Dakshinamurtaye Namah. Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavat Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namah. Vande Gomataram, Vande Sanskritamataram, Vande Bharatamataram, Jayatu Gurudeva, Jayama Lalitambika. Now, you can see this is an Agnihotra Patra with a stand. I placed it above 3 bricks. Now this Agnihotra Patra, what makes this Agnihotra Patra is the dimension. This is 14.5 centimeter by 14.5 centimeter in the top. In the bottom, it is 5.25 centimeter by 5.25 centimeter. And the height is 6.5 centimeter by 6.5 centimeter. And the angle to the earth is 51 degree. Other than this, अगर यदि कोई भी अग्निहोत्र पात्र ऐसा नहीं है तो वो अग्निहोत्र पात्र ही नहीं है. कोई और हवन कुंड हो सकता है, but if this dimension is not there, that is not अग्निहोत्र पात्र. Right? हमारे पास देसी गोवंश के उपले, कंडे, गोईठा, पाती, काउडंग केक्स हैं. डिफरेंट शेप्स में आते हैं. तो क्या खास बात है, अग्निहोत्र कहते हैं 6 चीजों से बनकर अग्निहोत्र होता है. तो पहला क्या है, अग्निहोत्र पात्र. दूसरा क्या है, ये देसी गोवंश के कंडे, उपले, गोईठा, पाती, काउडंग केक्स. The third thing is the timing, which is very crucial. We can have Tekoji's app downloaded on our Android, or we can have Agnihotra Buddy app. When we switch on the location, GPS location, and our Wi-Fi or mobile data is switched on, the latitude and the longitude of the concerned place, this app or these 2 apps, whether it be Tekoji's app, Agnihotra Tekoji's app, or Agnihotra Buddy app, it automatically takes the sunrise and sunset timings. Automatically, we don't have to put latitude and longitude. We select it not manually, but through Google Maps. That's the only thing we have to do. Secondly, अब समय हो गया पता, अब क्या करें. तीसरी चीज तो पता चल गई. मान लो अभी तो अग्निहोत्र हो चुका है. दिस इज जस्ट अ डेमो. अग्निहोत्र तो शाम का
इंद्रप्रस्थ में, नवदिल्ली में 7 से 10 या 20 सेकंड का अलग अलग जगहों पे अंतर होता है। ईस्ट दिल्ली में अलग होगा, नॉर्थ दिल्ली में अलग होगा, साउथ दिल्ली में अलग होगा, सेंट्रल दिल्ली में अलग होगा, कुछ सेकंड्स का फर्क होता है। इन सेकंड्स में मान लो 6:01 पर है, तो 6:01 से कहते हैं लेवरेज होता है 30 to 40 सेकंड्स का। एग्जैक्ट 6:01 पे ना कर पाए तो अगले 30 से 40 सेकंड तक कर सकते, उसके बाद वो अग्निहोत्र नहीं रहा। तो समय का बहुत ध्यान रखना है। चौथा चीज क्या है? अग्निहोत्र पात्र हो गया, गोवंश के उपले कंडे गोईठा पाती काउडंग केक्स हो गए, सटीक सूर्योदय सूर्यास्त समय हो गया। चौथा है मंत्र, सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदन्न मम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदन्न मम। और शाम का मंत्र केवल एक स्थान पे अंतर है, सूर्य के स्थान पे अग्नये, अग्नये स्वाहा अग्नये इदन्न मम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदन्न मम। Now we can see there are two swahas in the mantra. Agnaye swaha, first swaha, अग्नये इदन्न मम। इदन्न मम मीन्स यह मेरा नहीं है, ये शरीर, ये वाणी, दिस डज नॉट बिलोंग टू मी। प्रकृति की देन है, ईश्वर की देन है, माता पिता की देन है। जिस घर में बैठे वो भी उसी के कारण है, तो गौ माता भी उसी के कारण है। तो उस प्रकृति को धन्यवाद करके अहंकार शून्य होने की प्रक्रिया अग्निहोत्र है। केवल बाह्य रूप से नहीं है, अंतर मन से सूर्य नारायण को अपने में प्रतिस्थापित करने की, उद्घाटित करने की, उससे ओतप्रोत होने की प्रक्रिया अग्निहोत्र है। और मंत्र में 2 स्वाहा पे 2 चुटकी चावल, 2 बूंद घी। तो पांचवी चीज क्या हो गई? पूर्ण साबुत चावल, अनब्रोकन अनपॉलिश्ड राइस। धान के साथ हो, धान के साथ ना हो, पर अनपॉलिश्ड होगा, अनब्रोकन होगा। टूटा फूटा चावल नहीं लेते, साबुत पूर्ण चावल, अक्षत। और छठी चीज है देसी गोवंश का घृत, घी। इसमें कई जगह हम देखते हैं ना, गाय का देसी घी, वो हमारी आवश्यकता नहीं पूर्ति करेगा। हमको गाय का देसी घी नहीं चाहिए, हमको देसी गाय का घी चाहिए। क्योंकि जर्सी का भी पीला रहता है, कंफ्यूज हो जाएंगे। न जर्सी का चाहिए, न भैंस का चाहिए, एवमेव केवल देसी गोवंश का घृत चाहिए। देसी गोवंश की क्या पहचान है? झालर होता है गले में, कंधे पे कुबड़ होता है, हम्प होता है। उस हम्प पर रोशनी जब पड़ती है, सूर्य की किरणें जब पड़ती है, तो कहते हैं 26 प्रकार के खनिजों का प्रकृति उत्पादन करती है, जो दुग्ध में आता है। और उस दुग्ध को निकालकर बिलो के दही बना के, दही को फिर बिलो के क्या करते हैं, मक्खन निकालते हैं, फिर घी बनता है। देयर इज अ प्रोसेस विच पीपल हैव फॉर मेकिंग घी। तो घी जब बन जाता है, उसमें कई सारे प्राकृतिक गुण होते हैं। तो आज हम लोग करके देखेंगे। मेरी सबसे प्रार्थना रहेगी 1 मिनट लें और साथ में मंत्र बोलें। कई लोग पहले से जानते हैं, कई लोग साथ जुड़े रहे, पर इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन फॉर द बिगिनर्स, लेट अस chant the mantra. First chant the morning Suryodaya Agnihotra mantra, and then we will come to Sayakal Suryast Agnihotra mantra. So whether you are muted or unmuted, you can say mute रखते हुए भी साथ में बोलेंगे। सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदन्न मम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदन्न मम। इदन्न मम, यह मेरा नहीं है, दिस डज नॉट बिलोंग टू मी। और ये इदम न मम नहीं है, द के ऊपर बिंदु है, म हलंत नहीं है, क्योंकि आगे नकार है। तो संस्कृत व्याकरण सम्मत नहीं होगा यदि हम बोले इदम न मम। नकार को फॉलो करेगा। अनुस्वार यानी बिंदु, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु, उनका अपना कोई रूप नहीं होता। वो अगले वर्ण का अक्षर माला में जो है उसका स्वरूप ले लेते हैं। इसलिए ओम भूर्भुवः स्व है, आगे प फ ब भ है, या पूर्ण विराम है, या स्वर है, तब तो मां है।
पर आगे गणपतये नमः, तो ओम गणपतये नहीं, ओम गम नहीं होता, ओम गणपतये नमः। ओंकार, ओंकार नहीं होता। संस्कृत होता है, संस्कृत नहीं होता है। सम उपसर्ग है, कृत धातु है, पर मकार बिंदु में परिणत हो जाता है क्योंकि आगे सकार है संस्कृत में, जो कि व्यंजन है, हल वर्ण है। तो इतना ध्यान रखेंगे। ये संस्कृत की कक्षा नहीं है, आई विल नॉट गो डीप इनटू दोस थिंग्स, इसीलिए मन में कोई संशय नहीं रखेंगे। इदं न मम। सायकाल का मंत्र क्या है? म्यूट रह के मेरे साथ बोलेंगे, अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं न मम, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं न मम। तो ये 6 चीजें हो गई। कई लोग चावल घी को 5वें में ही मान लेते हैं, वो भी सही है। चावल को अलग, घी को अलग माना, वो भी सही है। तो अब हम अग्निहोत्र करेंगे। एक छोटा सा टुकड़ा इसके बेस पे लगा देते हैं। हम कर्पूर तभी यूज करेंगे जब बहुत ज्यादा दिक्कत हो जलने में, सर्दी का समय, तीली कम रह गई माचिस में, तो ही कैम्फर का यूज करते हैं, वो भी देसी कर्पूर या भीमसेनी कर्पूर या ऐसी कर्पूर कैम्फर जो च्यूएबल हो, ईटेबल कर्पूर। नहीं तो इसमें चावल और घी के अलावा आवश्यकता नहीं। उसको देखें कैसे करते हैं बिना अधिक समय आपका लेते हुए। ये एक जो कंडा है, उपला है, गोईठा पाती है, इसको, इस पे मैं घी को चुपड़ दूंगा, लगा दूंगा, और इसी को जलाऊंगा एक कोने को और बीच में डाल दूंगा, तो ये बाकी सभी को जलाने की क्षमता रखता है। ऐसे मैंने रेक्टेंगुलर किया है इसको, ताकि बीच में अग्नि को प्रज्वलित होने के लिए स्थान मिलेगा, वायु वेग से वो जलेगा। फिर ये देखिए, ये लगा लिया, होप सबको दिख रहा है। और एक पे घी लगाएंगे, ऐसे घी लगा लिया, इसमें देसी गोवंश का घी, और इसको जला लेंगे। और इसे जले हुए टुकड़े को, कंडे के टुकड़े को, गोईठे के टुकड़े को, उपले के टुकड़े को बीच में इंसर्ट कर देंगे। अग्निहोत्र हो चुका है, पर दिस इज जस्ट अ डेमो। तो इसको कर रहे हैं हम लोग, सूर्य नारायण की कृपा से ही कर रहे हैं। इदं न मम, अपना तो कुछ है नहीं। बस इसको डाल दिया बीच में, ये एक जला हुआ सबको जलाएगा। मान लो बुझ गया तो उस पर बात करेंगे, क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो सब देखेंगे। अब ये जो जला हुआ है, इसमें हम चावल लेंगे, पूर्ण साबुत अक्षर, कटोरी में ले सकते हैं, बाएं हाथ में ले सकते हैं। समझो 2 निवाले के हिसाब से ले लेंगे, 80 ग्राम ले लो। 2 निवाले भी बना सकते हो, एक में भी करके आधा आधा दे सकते हो। अभी देखें क्या करना है। मैंने हाथ में लिया हुआ है, अब स्वाहा पर आहुति दूंगा एक, और दूसरी भी आहुति स्वाहा पर। अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं न मम, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं न मम। इतना ही मंत्र है अग्निहोत्र का। यदि आपकी इच्छा हो तो बाद में आगे के मंत्र बोल सकते हैं, जो कि अग्निहोत्र मंत्र नहीं है, शांति मंत्र, जैसे सत्यं शरणं गच्छामि, सत्य धर्मं शरणं गच्छामि, सत्य धर्म संघं शरणं गच्छामि। इसको 3 बार बोलते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अभी 2 मिनट और लेकर कुछ और बात कर लेते हैं। बड़ा सुंदर जला है वैसे, बहुत बढ़िया, मन तृप्त हुआ। इसमें सकारात्मक ऊर्जा रहती है। तो इस अग्निहोत्र पात्र को छेड़ना नहीं चाहिए 12 घंटे। पर इसके नीचे कुछ लकड़ी की पटरी रखते हैं, स्टैंड ऑब्वियसली रहता है, या ईंट रखते हैं, जैसे मैंने ईंटों को रखा हुआ है। या कई लोग थाली, जब हड़बड़ में होते हैं, थाली कुछ नहीं, थाली तो अवेलेबल होती है, उस पर रखते हैं, तो चलेगा। उसको रखने से क्या होता है, मान लो कई लोगों को
छोटे बच्चे हैं, कहीं पैर न लग जाए, कुछ भी गड़बड़ ना हो, अपमान ना हो, तो इसको बाहर बाद में उठा के, ऐसे ईंट को उठा लिया मैंने, पात्र को टच नहीं किया, ईंट को उठाकर बाहर रख दूंगा। इसके फ्यूम से मेडिटेशन कर सकते हैं, स्मोक मेडिटेशन कहते हैं हम लोग, अग्निहोत्र फ्यूम मेडिटेशन। इट जस्ट हैपेंड टू मी वन डे। ये जब अग्नि बुझ जाएगी तो इसका जो सफेद धुआं है, काला धुआं इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें देसी गोवंश के कंडे उपले हैं और देसी गोवंश का घी है, इसलिए आप और मैं आराम से बैठ पाते हैं। तो इसको बाहर उठा के रख सकते हैं ससम्मान। लास्ट मिनट ऑफ मी, आई विल देन हैंड ओवर टू डॉक्टर श्रुति। ये समझ लो कि सूर्य नारायण का भोजन पात्र है, हम एज अ बच्चे उनको 2 निवाले दे रहे हैं 2 स्वाहा पर। तो अगले अग्निहोत्र से पहले इसको मैं दिखा रहा हूं आपको, ये स्क्रबर है, लोहे का स्क्रबर मार्केट में 10 रुपए में मिलता है। बस हल्के हाथों से इसको मांझ लेना है, पानी से लेके और इसको मांझ लेना है बस। वी डोंट यूज डिटर्जेंट बिकॉज डिटर्जेंट खुद भी विषप्रद है। तो बस ऐसे ही हल्के हाथों से स्क्रबर से स्क्रब कर लेते हैं। कई लोग नींबू के रस से करते हैं, नींबू के छिलके से करते हैं, ऑरेंज के रस से, ऑरेंज के छिलके से करते हैं, सब ठीक है, पर इसमें डिटर्जेंट ना यूज करें। और 15 मिनट पहले हम शुरू कर दें इसको धोकर, 15 मिनट पहले धो लें अगले अग्निहोत्र से पूर्व, और 10 मिनट पहले बिना भागम भाग के आराम से शुरू कर सकते हैं। आखिरी प्रश्न कई लोग आज पूछ रहे थे सवेरे FAQs व्हाट्सएप में कि प्रियरंजन भैया यदि बीच में ये बुझ जाए तो क्या करें। अग्निहोत्र मंत्र ऑफर करने से पहले जो स्वाहा पे आहुति देते हैं, यस डेफिनेटली वी कैन यूज मिट्टी पात्र, 100% ओके। ये कॉपर का पात्र चलेगा, मिट्टी का पात्र चलेगा, बिल्कुल चलेगा, पर मिट्टी का पात्र टूट जाता है इसलिए थोड़ा अवॉइड करते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो वेयर वाज आई। तो इसमें ये देखिए अब ये धुआं पूरा हो रहा है। तो इसमें केवल इतना कहना है कि अगर मंत्र नहीं बोला है हमने अग्निहोत्र का, तो बुझ गया तो जला सकते, मंत्र के बाद आहुति के बाद बुझ भी गया तो कोई बात नहीं, पंखा जल सकते हो, हवा से वो जल सकता है, इसमें और कुछ करना आवश्यक नहीं, इनफैक्ट वर्जित है। और कुछ प्रश्न होगा तो अंत में लेंगे। आई विल वेलकम नम्रता एंड पूजा एंड आई विल ग्रेसफुली वेलकम डॉक्टर श्रुति। आपको नमस्कार है दीदी, आइए और हम लोगों को अपने जान से आह्लादित करिए। आपका स्वागत है। वंदे गोमातरम। Thank you, sir. Thank you so much for your kind words. Thank you very much for giving me this opportunity to explain about the Agnihotra. And thanks to all of you, Namrata ma'am and team. Thank you so much. Dhanyavad. A big thanks to Shruti ji for Yes, coming. ma'am. Thank you Yes, so ma'am. much. It's my We are pleasure, looking ma'am. forward because बहुत सारे लोगों को ना डाउट्स रहते हैं इसमें एलोपैथिक टर्म्स में, तो we would like to learn from you. जी ma'am. Can I start, ma'am, then? Yes. Yes. First, I will give my little परिचय आपको देना चाहूंगी मैं। Myself Dr. Shruti T. Verma. I am anesthesiologist by profession and working presently in इंदौर, मध्य प्रदेश। और जो हमारा आज का टॉपिक है अग्निहोत्रा और इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, उसके पहले मैं आपको एक अपना इस रूप में परिचय देना चाहती हूँ कि मुझे अग्निहोत्र का जो वातावरण है वो मेरे जन्म के पहले से मिला है। क्योंकि जब मेरे पिताजी बैचलर थे और उनकी जब मुलाकात श्रीमान माधव जी पोद्दार साहब जी, माधव स्वामी जी से हुई थी, तो 1973 में उन्होंने अग्निहोत्र उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर किया था। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जहाँ जो अग्निहोत्र खुद करता है, उसका व्यक्तित्व भी इतना प्रभावी होता है। उसको हम स्टेप वाइज़ देखेंगे, ऐसा क्यों होता है। तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे बचपन से अग्निहोत्र मेरे पिताजी से मिला और मेरे जन्म के पहले से मेरे घर में होता था। तो मुझे शुरू से इस वातावरण में रहने का सौभाग्य मिला। और जैसे आज का टॉपिक है
इट इज इम्पैक्ट ऑफ अग्निहोत्रा ऑन अ हेल्थ सिस्टम। जैसा कि इन्होंने बताया है कि अग्निहोत्र जो होता है वो आपके बॉडी सिस्टम पे, आपके वातावरण पे, आपके मानसिक स्वास्थ्य पे, आपके शारीरिक स्वास्थ्य पे हर प्रकार से प्रभाव देता है। इसका रीज़न ये है कि पहले हम इस बारे में अगर डिस्कशन करें, तो पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि प्रकृति, दैट इज़ नेचर, एंड इसका जो मनुष्य से संबंध है, ये हमारा बहुत पुराना संबंध है। और प्रकृति में जो भी चेंजेस होते हैं, प्रकृति में जो भी बदलाव होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हों, चाहे नेगेटिव हों, वो मनुष्य पे, जो कि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। क्योंकि जो कैपेबिलिटीज़, जो एक सौभाग्य ईश्वर ने मनुष्य को दिया है, वो किसी और प्रजाति को इस ब्रह्मांड में, आई थिंक, अर्थ तो ठीक है, ब्रह्मांड में नहीं मिला है। और प्रकृति का डायरेक्ट संबंध मनुष्य से होता है। तो जो इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, तो ये कहूँगी मैं कि ईश्वर की जो बनाई हुई प्रकृति है, वो भी एक चक्र में चलती है, एक सुचारू चक्र में चलती है। और मनुष्य का जो शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी होती है, वो भी एक सिस्टम पे वर्क करती है। उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसके लिए हम मेडिकल फील्ड में हम पढ़ते हैं, जो शुरू से फर्स्ट ईयर से एमबीबीएस में हम बेसिक साइंस पढ़ते हैं, उसके बाद हम और सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी इज आल्सो वर्किंग इन अ circadian rhythm. It seem like the what is working in the nature. So प्रकृति का मनुष्य पे सीधा प्रभाव है, या हम कह सकते हैं कि जो प्रकृति अगर दूषित होगी, तो मनुष्य का जीवन सुखी नहीं हो सकता है। तो जैसे कहा जाता है कि जब भी 5 एलिमेंट्स जिनसे प्रकृति बनी है, वही 5 एलिमेंट्स ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं। सो व्हेनेवर देयर इज अ इम्बैलेंस इन द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, it will create a disaster. And whenever there is a disturbance in the 5 elements of body, it will create a disease. So we can understand this thing ki disaster and disease both are in the similar fashion, right? Disaster जैसे कि हम अगर बात करें, तो जैसे अभी हम रिसेंटली जिस सभी पैंडेमिक से गुजरे हैं, वो जो कि कोरोना है, कोविड है, ये भी एक ह्यूमन नेचर के प्रकृति से जो छेड़छाड़ का ही एक नतीजा है। प्रकृति के 5 एलिमेंट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के जैसे चेंजेस हुए हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण है, जो हमने खुद ने क्रिएट किया है। हम खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारे साइंस ने ग्रो किया है, तो उसके लिए हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें मिली हैं, पर उसके बदले में हमें कुछ नेगेटिव मिला है। उसमें से एक बहुत बड़ी समस्या जो आज के समय में है, वो है पर्यावरण प्रदूषण, जिसमें हर प्रकार का प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, मानसिक प्रदूषण है, जो भी एक हमारी साइंस की टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। तो इस प्रदूषण ने, चाहे हमने वृक्षों को बहुत काटा हो, चाहे बायो टेररिज्म के रूप में हमने जेनेटिकली कुछ इन्फ्लुएंसेस जो ह्यूमंस ने किए हैं, जिसका कि एक एग्जांपल कोरोना वायरस में जो इंड्यूस्ड बायो टेररिज्म डाला गया है, या जो कुछ भी उसका हमें प्रकृति में जो डिजीज के फॉर्म में सामने दिखा है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक डिजास्टर के फॉर्म में हमारे सामने आई हैं। तो इन सभी चीजों ने जो प्रकृति का चक्र है, उसको विचलित कर दिया है, और उस प्रकृति के चक्र के विचलित होने के प्रभाव के इम्पैक्ट में हमें बाढ़ है, भूकंप है, कहीं पर महामारी है, कहीं पर हम देखते हैं सूखा है, कहीं पर इतना पानी है कि हम उसको बाढ़ के मारे लोग परेशान है, कहीं सूखा है। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो ईश्वरीय प्रकृति के अंदर हमारा छेड़छाड़ कह लें, हमारा जानकर या अनजाने रूप में, जिस रूप में भी हम कहना चाहें उसको, कहीं न कहीं दिस इज़ अ इम्बैलेंस इन द साइकिल ऑफ दिस नेचर, व्हाट वी आर फेसिंग नाउ। सो इसका प्रभाव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मनुष्य जीवन पर पड़ता है, और पड़ना स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम एक दूसरे के पूरक हैं, प्रकृति और मनुष्य। तो उसी चीज़ में मैं बोलना चाहूँगी कि वातावरण जब स्वस्थ नहीं है, तो मनुष्य स्वस्थ नहीं हो सकता। चाहे हमारा मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे हमारा सामाजिक स्वास्थ्य हो, चाहे हमारा बौद्धिक स्वास्थ्य हो या शारीरिक स्वास्थ्य हो। ये सभी चीज़ें जो हैं, वो हमें हमारी नियमितता को भंग करती हैं, और उसका वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर उसी रूप में पड़ता है। आज हम अन्न खाते हैं, वो दूषित है। आज हम
वायु जो लेते हैं वो प्रदूषण के कारण दूषित है। आज हम देखते हैं कि वातावरण जो बाहर है वैसा ही वातावरण सामाजिक रूप से जो हमारी जनरेशन और हमारी आने वाली जनरेशन फेस कर रही है, ये सभी दूषित हैं। और इस दूषित वातावरण से, चाहे वो मानसिक प्रदूषण हो, चाहे वो शारीरिक सामाजिक प्रदूषण हो या वातावरण का हो, इस सब से से हम बच नहीं सकते हैं। हमें इसको फेस करना ही है, क्योंकि जैसे कोरोना आया या फिर और कोई महामारी आई पहले भी कभी, तो इन सब का प्रभाव जानकर या अनजाने रूप में हर व्यक्ति ने झेला है, हर जानवर ने झेला है, हर तरह की, तो ये हमारा ही किया हुआ है जैसे हम भोगते रहे हैं। तो अग्निहोत्र का सबसे बड़ा और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि ये ईश्वरीय आदेश है, जो किसी धर्म, किसी जाति, किसी बंधन से नहीं है। ये आप मनुष्य होने के नाते एक आपका कर्तव्य है कि आप प्रकृति को से जो लेते हैं, प्रकृति का जो दोहन करते हैं, उस प्रकृति को हम सुचारू रूप से चलाने में योगदान करें, क्योंकि इसका कहीं न कहीं इम्पैक्ट हम पर और हमारी आने वाली जनरेशन जो है, हमारे बच्चे हैं भविष्य के, उन सब पर पड़ने वाला है। हम अपने बच्चों को आज एक अच्छा कपड़ा पहनाने की कोशिश करते हैं, एक अच्छा खाना देने की कोशिश करते हैं, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम देने की कोशिश करते हैं। पर हम उस वातावरण का क्या करें जिसमें उन लोगों को जीना है? जो वातावरण इतना दूषित हो चुका है, जो जिस जिस वातावरण में इतनी ज़हरीला पदार्थ है जिसमें उन्हें साँस लेना है, वो हम उसकी तरफ हमारा जो ध्यान है, उसकी तरफ हमारी जो प्रयास हैं, मुझे ऐसा लगता है थोड़े से कम हैं। तो अग्निहोत्र उस दिशा में एक ईश्वरीय आदेश है, आपकी दिनचर्या, आपके जीवन, आपकी लाइफ़स्टाइल, आपके स्वास्थ्य, सबको एक रेगुलराइज़ फ़ॉर्म में मेंटेन करने के लिए अग्निहोत्र बहुत ज़रूरी है। अग्निहोत्र कैसे प्रभाव आप पे करता है, हम उसको टू द पॉइंट डिस्कस करते हैं अभी। बट मैं जनरल क्रक्स में अगर आपको बात करूँ, तो जो प्रकृति है, उसके काल चक्र को एक अग्निहोत्र रेगुलराइज़ करता है। उसी के आप हिस्से हैं, हम हिस्से हैं, इसीलिए हमारे बॉडी को, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को हर तरह से रेगुलराइज़ करता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई डिज़ीज़्ड पर्सन अगर है, तो उसकी डिज़ीज़ अग्निहोत्र से ठीक हो जाएगी। बट जैसे कि लेवल ऑफ डिज़ीज़ प्रिवेंशंस होते हैं, मतलब कोई भी डिज़ीज़ अगर आपको मेडिकल टर्म्स में बात करूँ, तो कोई भी डिज़ीज़ जब डेवलप होती है, तो उसके 4 लेवल होते हैं। उसको लेवल ऑफ डिजीज प्रिवेंशन बोल सकते हैं या फिर लेवल ऑफ डिजीज डेवलपमेंट बोल सकते हैं, जिसमें प्रिमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्टेजेस होती हैं। प्रिमोर्डियल स्टेज का मतलब होता है कि किसी भी बीमारी के डेवलप होने के लिए जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, अगर आप उनको प्रिवेंट कर सकें, दैट इज प्रिमोर्डियल। आप प्राइमरी अर्थात डिजीज तो रिस्क फैक्टर आपके डेवलप हो गए बॉडी में, बट आप उस डिजीज का प्रिवेंशन रोक सकें। और सेकेंडरी का मतलब होता है जब डिजीज आपकी ऑलरेडी हो गई है और उसका आप ट्रीटमेंट करें। और टर्शरी स्टेज जो होती है कि यू कैन नॉट डू द ट्रीटमेंट बट यू कैन गिव अ पॉजिटिव गुड लाइफ टू अ पर्सन आफ्टर दैट डिजीज। तो अग्निहोत्र हर लेवल पे वर्क करता है। अगर हम बच्चों को शुरू से ये वातावरण देते हैं, तो घर का वातावरण स्वस्थ रहता है, घर का वातावरण बैक्टीरिया फ्री होता है, तो 90% जो जर्म्स हैं आपके घर के मर जाते हैं। घर के अंदर एक अनुशासन आता है, तो बच्चों का जो एक सामाजिक विकास है, बौद्धिक विकास है, वो होता है। उनका शारीरिक स्वास्थ्य जो है, वो बहुत हद तक ठीक होता है क्योंकि वो सुबह उठना सीख जाते हैं और हम खुद, क्योंकि 90% जो आज की डिज़ीज़ हैं, चाहे आप डायबिटीज़ हो, चाहे कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ हो, हार्ट अटैक हो, हार्मोनल हो, कोई भी चीज़ों में सबसे पहला रिस्क फैक्टर मैडम जो है दैट इज़ दी योर लाइफ़स्टाइल। दूसरा आप क्या सोचते हैं? तो अग्निहोत्र आपकी मानसिकता, आपकी विचारधारा को इतना उन्नत करता है कि आप अपने जीवन के उतार-चढ़ाव में एक पॉजिटिव डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि उतार-चढ़ाव तो जीवन का हिस्सा है। वो कभी किसी के खत्म नहीं होते और अग्निहोत्र कोई चमत्कार नहीं है कि आप स्टार्ट करेंगे, आप शुरू करेंगे तो आपके जीवन में कुछ होगा ही नहीं। हर व्यक्ति मनुष्य जीवन में आया है, उसको एक जीवन के फेज़ से गुज़रना है, तो उसको उतार-चढ़ाव जीवन में उसके आएँगे।
पर अग्निहोत्र उसको उस जीवन के उतार चढ़ाव में इतना मजबूत बनाता है, उसकी मानसिक और बौद्धिक क्षमता को इतना स्ट्रांग रखता है कि वो व्यक्ति सही डिसीजन लेता है उस परिस्थिति में भी। तो अग्निहोत्र जो है बीमारी और हेल्थ के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो हर लेवल पे प्रभावित करता है। कोई व्यक्ति बीमार भी है, अगर आप घर में उसके लिए अग्निहोत्र करते हैं उसके सामने, तो उसको बहुत अच्छा फील होता है, उसको बहुत पॉजिटिव फील होता है, उसको अपनी बीमारी में, अपने हेल्थ में बहुत सुधार महसूस होता है। तो हम हर लेवल पे, लेवल ऑफ डिजीज प्रिवेंशन पे अग्निहोत्र को कारगर मानते हैं। अब अगर मैं अग्निहोत्र के बारे में स्पेसिफिकली बात करूं, तो अग्निहोत्र के जो इम्पैक्ट्स हैं, जैसे मैंने वातावरण पे बताया, तो हम उसको साइंटिफिकली एनालाइज कर सकते हैं कि जैसे हम अग्निहोत्र जब करते हैं, तो जैसा कि इन्होंने महोदय जी ने बताया कि वातावरण में जो भी गैसेस निकलती हैं, उसको जैसे इथिलीन ऑक्साइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है, बीटा प्रोपियोलैक्टोन है, तो ये सब जो गैसेस होती हैं, ये इसलिए होती हैं कि हम जब गाय के गोबर के कंडे की अग्नि लगाते हैं, उसको प्रज्वलित करते हैं पायरेमिड के पॉट में, तो ये सारी गैसेस जो हैं, दे आर दी बैक्टीरिसाइडल। क्योंकि हम जब ऑपरेशन में वॉश होते हैं, ओटीज वगैरह में, ऑपरेशन थिएटर्स में, तो सबसे पहले अगर कोई इन्फेक्टेड केस होता है, तो हम उसको फॉर्मेलिन सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड से हम उसको पूरा फ्यूमिगेट करते हैं ओटी को। हम ये मान के चलते हैं कि हम आधा घंटा 1 घंटा अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड गैस को वहां पर रखेंगे, तो पूरी ओटी जो है फ्यूमिगेट हो जाएगी। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम जब इंस्ट्रूमेंट सर्जरी करते हैं, तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को ऑटोक्लेव करते हैं। जब बहुत जल्दी होती है, तो उसको हम फॉर्मेलिन चैम्बर में रखते हैं। तो फॉर्मेलिन, चाहे इथेनॉल, जो कि हम आजकल सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, आप सब जानते हैं कि इट इज अल्कोहल एंड इट इज वायरिसाइडल एंड बैक्टीरियासाइडल, सॉरी। तो ये जो गैसेस हैं, दे आर नेचुरली प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द अग्निहोत्रा। ये अलग-अलग लोगों ने, जहाँ पे विदेशों में अग्निहोत्र होता है, सबने अपने-अपने साइंटिफिक एनालिसिस किए हैं। ऑल्दो आई कैन नॉट प्रोड्यूस यू द ऑल papers and presentation right now, but it is just the research what people had done in Agnihotra University, कि इस तरीके की जो गैसेस हैं, ये वातावरण में बैक्टीरिसाइडल का काम करती हैं। दैट इज अ प्रूवन थिंग एज अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। बट क्योंकि आप पुराने समय में हमारी सभ्यता में देखें, घरों में पहले गोबर का लीपा जाता था, और वो उसके पीछे यही रीज़न था कि जो गोबर है, गाय का गोबर है, देसी गाय, जैसे आपने बताया कि देसी गाय का जो गोबर है, उसमें भी इतने औषधीय गुण होते हैं कि जब उसको लीपा जाता है, तो वहाँ जो डोर स्टेप पे आपने उसको किया है, तो आपके 90% जर्म्स तो आपके घर में आते ही नहीं थे, जो हम पुरानी सभ्यता में देखते हैं। तो जो गौ माता है, उनका एक बहुत बड़ा योगदान जो है हमारी संस्कृति में है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बताया कि जो वातावरण पे अग्निहोत्र का प्रभाव है, उसमें सबसे पहला पॉइंट यही है कि इतनी जो गैसेस निकलती हैं, वो हमारे वातावरण को, घर के वातावरण को शुद्ध करती हैं। दूसरी चीज इसमें जो बताई है कि पिरामिड शेप का हम जो पॉट यूज करते हैं, तो पिरामिड शेप की एक क्वालिटी होती है कि जब पिरामिड उल्टा होता है, तो ये एक एनर्जी को कंजर्व करता है एक जगह पे। और जब हम उस पात्र को सीधा कर देते हैं, जो हमारा अग्नि पात्र बन जाता है, और उसमें हम कुछ भी चीज डालते हैं, तो उसको एक्सपांड करता है। तो आप जब गाय के घी और चावल की आहुति देते हैं, तो वो पिरामिड में जो भी आपकी गैसेस हैं, उसको एक्सपांड करता है। तो ये इसका एक साइंटिफिक है कि हम उसमें ज्यादा से ज्यादा एरिया को शुद्ध कर सकते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है इसमें, कि पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है जब अग्निहोत्र होता है हमारे घर में। पॉजिटिव एनर्जी का मतलब है, जब आप दिन भर के अपने प्रोफेशन है, बिजनेस है, आपका जो भी है, घर आते हैं, वो जब शाम का अग्निहोत्र करते हैं, तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। उसका कारण ये है कि जितनी भी ब्रह्मांडी किरणें होती हैं, जितनी भी जो हमें एक गुड फीलिंग का एहसास कराती हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं या फिर हम कुछ शांत होकर बैठते हैं, तो हमारे अंदर से एक चैनल जो एनर्जी की जाती है ब्रह्मांडी किरणों से, तो ये पिरामिड का पॉट उनको अट्रैक्ट करता है। और जब उसी समय पे हम वहाँ बैठते हैं, उस तो हमें एक मेडिटेशन के लिए, जो भी मेडिटेशन आप करते हैं, जिसे भी मानते हैं, उनका जब आप चिंतन करके
जब वहाँ बैठते हैं तो आपको वो एनर्जी चैनलाइज होने लग जाती है। तो आपको एक जो गुड फीलिंग है, आपकी जो एंग्जायटी रिमूवल है, वो सब आपको धीरे-धीरे ऐसा लगने लगता है कि नाउ वी आर गेटिंग वेरी लाइटर। मनुष्य के साथ-साथ एनिमल्स पे, ट्रीज़ पे भी आप इसका प्रभाव देखेंगे वातावरण में। जहाँ भी अग्निहोत्र होता है, वहाँ पर अग्निहोत्र के वातावरण में आप पौधों को देखिए, उसकी अच्छी ग्रोथ होती है। आसपास की प्रकृति में एक आनंद का आपको एहसास होगा अगर आप खुले में बैठ के कभी अग्निहोत्र करते हैं तो। क्योंकि जो संधि काल बनाया गया है सूर्योदय और सूर्यास्त, उसका ह्यूमन बॉडी से बहुत डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। क्योंकि जिस तरीके से एक सर्केडियन रिदम प्रकृति में होती है, उस तरह से हमारे मनुष्य के शरीर में भी एक सर्केडियन रिदम होती है। सर्केडियन रिदम के बारे में मैं आपको ये बताऊँगी कि हमारे ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और हमारे बॉडी में जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं, वो सब सेंट्रल कंट्रोल से रेगुलराइज़ होते हैं। तो हर हार्मोन का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, चाहे थायराइड हार्मोन हो, चाहे सेरोटोनिन हो, चाहे आपका इंसुलिन हो, हर हार्मोन की एक रिदम होती है सिक्रीट होने की। मतलब ये कहें अगर हम जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत प्रोटेक्टिव वे में होते हैं, जैसे आप लोगों ने स्टेरॉइड का नाम अभी ट्रीटमेंट में बहुत सुना होगा कि कोविड में हमें स्टेरॉइड देना पड़ा, तो वी कैन से ये हमारे बॉडी का स्टेरॉइड एक ऐसा पार्ट है जो एक इमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी में काम आता है। तो उस स्टेरॉइड की भी एक सर्केडियन रिदम होती है बॉडी पे। 4 o'clock के करीब 4 to 5 जो ब्रह्म मुहूर्त का समय हमें बताया गया है, उसमें वो मैक्सिमम लेवल पे होता है स्टेरॉइड। तो इसके टाइमिंग्स जो हैं, पल्सेटिव फॉर्म में ये सिक्रीट होते हैं हमारी बॉडी में हर तरह का हार्मोन। उस सर्केडियन रिदम को कोई ना कोई एक शक्ति है जो रेगुलराइज़ कर रही है उसको। कोई ना कोई एक बॉडी का क्लॉक सेट है जो उसको रेगुलराइज करता है। उस क्लॉक को सर्केडियन रिदम कहते हैं। तो अग्निहोत्र उस सर्केडियन रिदम को इस तरह से सेट करता है कि आपके सारे हॉर्मोन्स, आपके सारे अवयव जो हैं अंदर के जो अंग हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। सो ये इसका एक इम्पैक्ट जो मैंने आपको सर्केडियन रिदम पे अग्निहोत्र का बताया, ये जिस तरह से बॉडी के सर्केडियन रिदम को रेगुलराइज करता है, उसी तरह से अग्निहोत्र जो है वो प्रकृति की सर्केडियन रिदम्स को भी रेगुलराइज करता है। अगर मैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक बॉडी के टर्म्स में बात करूं कि बॉडी पर अगर हम बात करें तो एक मैंने जनरलाइज फॉर्म में आपको बोल दिया कि सर्केडियन रिदम मेंटेन करता है। पर अगर मैं उसको साइंटिफिक टर्म में बोलूं तो जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी का, हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को, सारी सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि जिसको दिमाग कहा जाता है, यानी कि जैसे ब्रेन कहा जाता है, वो रेगुलराइज करता है उसके डिफरेंट पार्ट्स। तो हमारे सीएनएस की जो एक्टिविटीज होती हैं, अग्निहोत्र के बाद ऐसा देखा गया है, एक टेस्ट होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी ईईजी, जो कई साइकियाट्रिक पेशेंट्स में, ब्रेन के पेशेंट्स में हम लोग करते हैं। तो ईईजी की जो वेव्स होती हैं, दे विल टेल यू अबाउट कि व्हाट काइंड ऑफ टेम्पर अ पेशेंट और अ पर्सन हैव। लाइक अगर अल्फा वेव्स उसमें हैं तो वो एक्टिव होती हैं, बीटा है तो वो काम होती हैं, जो डीप वेव्स होती हैं, डेल्टा वेव्स, वो एक तरह की नींद या कोमा बोल सकते हो आप, उस स्टेज में आपको लेके जाती हैं। तो ऐसा देखा है कि जो अग्निहोत्र करने के बाद ईईजी मॉनिटर्स लगा के, तो अग्निहोत्र आपकी जो एक्टिव अल्फा वेव है एंजाइटी वाली, उसको बीटा में कन्वर्ट करता है। तो उससे हमें एक अच्छा फील होता है, हमें अपनी एक आनंद महसूस, जो आनंद की अनुभूति जिसे कहते हैं, ये मेडिटेशन से भी प्राप्त होती है। पर मेडिटेशन करने के लिए एक मानसिकता की बहुत ज़रूरत होती है। एक डिप्रेसिव पर्सन मेडिटेशन से भी बाहर आ सकता है, पर क्या होता है कि जो एक कमज़ोर व्यक्ति होता है, एक कमज़ोर होता है, उसको ऊपर आने के लिए कुछ न कुछ कभी-कभी सहारे की ज़रूरत होती है। कोई बहुत ही ऐसा व्यक्ति है जो कमज़ोर है, तो अग्निहोत्र उसका सहारे के रूप में, उसके एक हेल्प के रूप में, उसको उस परिस्थिति से बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। उसका वातावरण उसको वो सारे एफर्ट्स करने में, मेडिटेशन करने में उसको 10 गुना इफ़ेक्ट देता है। जो उसकी प्रगति उसके मैं इतना आध्यात्मिक तो नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, कुछ स्टेजेस होती होंगी, जो हमारे योगी और ऋषि-मुनि जिस तक जाते होंगे। मैं तो नहीं उस बारे में कुछ जानती हूँ, बट हाँ, मैं इतना जानती हूँ कि शायद उस स्टेज को पहुँचने में अग्निहोत्र आपको बहुत तेज़ी से मदद करता है। क्योंकि ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को
इस तरीके से हेल्प करता है। दूसरा, अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बात करें, यानी कि हमारे श्वसन तंत्र पे, तो अग्निहोत्र के पास जब जो धुआं निकलता है, वो सारा हमारा, जब हम अंदर लेते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं, तो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है आपकी, वो आपके लंग्स के जो कैपेसिटी है, जो रिजर्व होता है हमारा, ऑक्सीजन रिजर्व जिसको बोलते हैं, जिसको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एफआरसी बोला जाता है, तो वो जो एफआरसी है उसको इम्प्रूव करती है। तो एफआरसी इम्प्रूव होने पे कभी भी आप ऐसी सिचुएशन जब फंसते हैं, जब आपको ऑक्सीजन नहीं है या कोई आप बीमारी के स्टेज पे हैं, तो आपके लंग्स बहुत अच्छे रिस्पॉन्ड करते हैं। उनके अंदर जो रिजर्व है, उनके अंदर जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन को कैरी करने की या रेस्पिरेशन की, वो बहुत अच्छी मेंटेन होती है अग्निहोत्र से। क्योंकि जब आप उसके एटमॉस्फेयर में जब आप प्राणायाम करते हैं, तो उसके आपको इफेक्ट्स भी बहुत जल्दी मिलते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बॉडी बॉडी का है, वो है मन। मन कोई पार्ट नहीं है एक्चुअली। मन इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के सारे इमोशंस और एवरीथिंग्स कंट्रोल करता है। तो ये जो मन है, मन शांत और खुश होता है। हमारा मन और शांत खुश अग्निहोत्र करने से क्यों होता है? मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ, तो मैं एक टर्मिनोलॉजी यूज करूंगी यहाँ पे, एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स जो होते हैं हमारे बॉडी के, ऐसे कह सकते हैं आप, हार्मोन है या केमिकल है, जो पेन रिलीफ जब होता है हमको, चाहे हम गोली लें, चाहे हम एक्यूप्रेशर लें, या जो भी चीज लें, तो हमारे पेन पाथवे में एंडोर्फिन्स जो सीक्रेट होते हैं, वो हमको पेन रिलीफ का एहसास देते हैं। तो अग्निहोत्र से एंडोर्फिन्स खुद ही सीक्रेट होते हैं। सेरोटोनिन, डोपामिन, ये सारे जो भी केमिकल्स हैं, ये सारे केमिकल्स जो हैं, जैसे खुश होते हैं आप जब, तो इसलिए कहते हैं ना, खुश रहो सब कुछ अच्छा होगा। उसका रीजन ये है कि जब हम खुश होते हैं, तो हमारे बॉडी में सेरोटोनिन निकलता है, डोपामिन निकलता है, ये हमारा ब्रेन सीक्रेट करता है। तो ब्रेन की जो सोच है, वो उन सेंटर्स को ये मैसेज देती है कि अब ये सीक्रेट करो, तो देन बॉडी विल रिएक्ट इन दैट वे। आपको सब अच्छा लगने लगता है, फिर आपको भूख भी लगने लगती है, आपको वातावरण भी अच्छा लगने लगता है। तो सारा केंद्र जो है वो यहाँ है, और अग्निहोत्र का बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आपके सर्केडियन रिदम पे होता है, आपकी मानसिकता पे होता है, जो आपको ये सारे हॉर्मोन्स उनके अंदर सीक्रेट होते हैं। डेफिनेटली अग्निहोत्र के साथ साथ आपकी खुद की पॉजिटिव जो ताकत है, जो आपकी सोच है, सोचने की क्षमता है, जो प्रणाली है, वो भी मदद करती है। और अग्निहोत्र हमारी सोच को बहुत बोल्ड बनाता है, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। जब हमारे घर अग्निहोत्र होता है, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमेशा ईश्वर शक्ति हमारे साथ है। हम एक ईश्वरीय आदेश का पालन करते हैं। हम एक नियमित तरीके से प्रकृति के हिस्से बने हुए हैं। हम प्रकृति को कुछ जो हम उससे लेते हैं, उसका कुछ परसेंट दे रहे हैं, सब तो हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ईश्वर का जो हम पर ऋण है, ये मनुष्य जीवन देने का, उसको तो हम कभी चुका ही नहीं सकते हैं। बट हमारा कर्तव्य जो है, हम उसको पूरा करते हैं, कि गुड फीलिंग हमारे अंदर होती है। तो आपके जीवन में कॉन्फिडेंस होता है कि ईश्वर शक्ति हमारे साथ हमेशा है। हमारा कुछ भी बुरा नहीं होगा। हम एक अच्छा कार्य करेंगे। हम एक अच्छे प्रयास में जा रहे हैं। हम एक अच्छी विचारधारा में जा रहे हैं, तो हमें सब अच्छा ही होगा। तो ये हमारे मानसिकता पे प्रभाव है। इसी के कंटेक्स्ट में डी एडिक्शन जो मैं आपके बारे बताना चाहूंगी, कई लोगों के अनुभव हैं अग्निहोत्र के, कि डी एडिक्शन जो है, डी एडिक्शन देखा गया है कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा भी एडिक्शन रहा है, उनका डी एडिक्शन करने में अग्निहोत्र ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है। कुछ लोग जो डी एडिक्शन सेंटर जाते हैं और अग्निहोत्र नहीं करते हैं, और जो लोग डी एडिक्शन सेंटर जाके अग्निहोत्र करते हैं, तो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट थोड़ा फास्टर है। रीजन मैंने आपको बताया, वो सब सेम ही है, कि आपको अच्छा वातावरण मिलता है, एक अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, एक अच्छी सोच मिलती है, और एक उस कमजोर परिस्थिति से बाहर निकलने में आपको एक बूस्ट मिलता है अग्निहोत्र के वातावरण से। तो ये डी एडिक्शन का जो मैंने आपको बताया। इसके बाद तीसरा जो है डिजीज, जो लेवल ऑफ मैं आपको प्रिवेंशन बता रही थी, उसमें वातावरण पे प्रभाव और बॉडी पे प्रभाव मैंने बताया। डिजीज के बारे में मैं बात करूं, तो एक माधव आश्रम का प्रकाशन है अग्निहोत्र चिकित्सा पुस्तक। आप उसको पढ़ेंगे, उसमें तो अग्निहोत्र के बारे में, जैसे अग्निहोत्र खुद तो एक रामबाण एक इलाज है हर चीज का, एक सर्वदाता है अग्निहोत्र।
जिसको शायद मैं आपको शायद 45 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, और मैं उस चीज़ में इतनी, क्या कह सकते हैं उसको, मैं नहीं हूँ इतनी जानकार उस विषय में, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। मतलब मैं आपको समुद्र का एक बूँद बता रही हूँ, ये समझ लीजिए, और अग्निहोत्र उससे कहीं कहीं आगे है। तो हर व्यक्ति का हर एक प्रकार का डिफरेंट अनुभव है। किसी का डी एडिक्शन में अनुभव है, किसी का मानसिक स्वास्थ्य में अनुभव है, किसी का शारीरिक स्वास्थ्य में अनुभव है। तो इसके इतने सारी डाइवर्सिटीज़ हैं अग्निहोत्र की, कि उसको अपन कैच नहीं कर सकते। ये एक ऐसा अनुभव है कि मैं अगर आपको कहूँगी कि ये मिठाई है और इसे टेस्ट कीजिए, ये मीठी है। बट आप जब तक उस मिठाई का पीस उठा के खाएँगे नहीं, तो आप उसकी मिठास का अनुभव नहीं कर पाएँगे। तो इट इज़ जस्ट लाइक सेम, आप जब तक अग्निहोत्र खुद नहीं करेंगे, उसका अनुभव नहीं समझ पाएँगे। और इसके कॉन्टेक्स्ट में जैसे मैं बता रही हूँ डिज़ीज़ में, कि चिकित्सा जो पुस्तक है उसमें आपको अग्निहोत्र पाउडर है, अग्निहोत्र के कैप्सूल्स बनते हैं, अग्निहोत्र की मलम, ऑइंटमेंट्स हैं, आई ड्रॉप्स हैं। तो इन सब के अलग-अलग डिज़ीज़ेज़ पे इफ़ेक्ट हैं। कुछ बीमारियों पे इतने परफेक्ट इफ़ेक्ट हैं, जैसे टॉन्सिलाइटिस है, तो अग्निहोत्र भस्म को शहद के साथ अगर खाते हैं, तो 2 से 3 बार परमानेंट, कई बार टॉन्सिलाइटिस की समस्या ठीक हो जाती है। तो अग्निहोत्र भस्म तो इफेक्टिव है, 96 एलिमेंट्स हैं, 105 टोटल अर्थ पे होते हैं, उनमें से 96 अगर किसी चीज़ में है, तो आप क्यों नहीं अपने घर में, अगर अग्निहोत्र की भस्म है, और उसका सेवन करें। हम इतने सप्लीमेंट्स खाते हैं, कैल्शियम खाते हैं, विटामिन डी खाते हैं। मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ, मैं 9 मतलब मैं 24 में से समझ लीजिए आप 8 आवर्स ओटी में रहती हूँ, मुझे सूरज दिखता ही नहीं है। तो मेरे बॉडी में विटामिन डी बन ही नहीं पाता है, तो मुझे सप्लीमेंट लेना पड़ता है विटामिन डी का। तो अग्निहोत्र ऐश हैज़ हर तरह के मिनरल्स, हर तरह के उसमें चीज़ें हैं, मैक्सिमम है, हर तरह का तो नहीं बोलूँगी, मैक्सिमम है, तो हम उसको लेते हैं। और अग्निहोत्र की ऐश का मेरा एक पर्सनल अनुभव है, कितना मैं सही हूँ आई डोंट नो, बट कोविड टाइम में जब आई वाज़ इन पुणे एंड आई वाज़ वर्किंग एज़ अ रेज़िडेंट देयर इन केईएम हॉस्पिटल, तो जब फर्स्ट वेव आई थी फर्स्ट, तब मुझे बहुत, सभी को डर था, क्योंकि वो एक ऐसा पैंडेमिक था जिसमें कि किसी को कुछ नहीं पता था। नो मेडिकल साइंस इन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड डजंट नो हाउ टू डील विद दिस वायरस एट इनिशियल टाइमिंग, क्योंकि ये कोई पैथोलॉजिकल वायरस नहीं था जिसको सब जानते हो, जिसके बारे में पढ़ा हो। ये एक नई कृति थी, बायो टेररिज्म था या जो भी था। तो हम उसके बारे में उस समय कुछ नहीं जानते थे। तो उस समय में अग्निहोत्र मैंने रेगुलर किया, और रेगुलर मतलब जब मेरी इमरजेंसीज होती थी तब तो नहीं किया, जब मैं घर आती थी तब मैंने इतने समय के लिए किया। और अग्निहोत्र ऐश का सेवन मैंने 2 से 3 बार दिन में किया। तो मुझे उससे कोरोना तो नहीं हुआ पर मुझे बहुत इम्यूनिटी मिली। और उसके बाद मैं ये नहीं कहूँगी कि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं भस्म खाती थी। मैं ये कहूँगी कि उससे मेरी इम्यूनिटी अच्छी रही। उसके साथ-साथ मैंने प्रिकॉशंस भी रखे सारे। तो एक ये मेरा अनुभव अग्निहोत्र की भस्म के बारे में ये है कि मुझे एक उससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये मैं खाऊँगी, अग्निहोत्र करूँगी, तो मैं सब अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाऊँगी। मैंने किया और मुझे ईश्वर ने शक्ति दी ये सब काम करने की, और मैंने उसको किया। तो अग्निहोत्र से जो मुझे मानसिक शांति उस समय मिलती थी, क्योंकि लोग हमारे आप लोग जैसे आप लोगों ने बाहर झेला है, उससे कहीं ज़्यादा डॉक्टर्स ने झेला है। सब कहते हैं वॉरियर्स हैं, पर उससे कहीं ज़्यादा डॉक्टर्स ने झेला है, क्योंकि हमने वो तकलीफ वो आईसीयू में देखी है लोगों की। तो उस समय भी एक डॉक्टर है पर वो भी एक मनुष्य है, उसका भी मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ाता है, जब ऐसी सिचुएशन आती है उसके सामने तो। तो अग्निहोत्र ने मुझे पर्सनली मेरा अनुभव है कि उस समय में मुझे बहुत मानसिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी, कि मैं बिना अपनी डरे कि क्या होगा, ये मुझे मेरा बेटा उस समय छोटा था 2 एंड हाफ इयर्स का ही था। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं कर लूँगी ये और मुझे कुछ नहीं होगा। So that was my positive attitude toward that, and Agnihotra has helped me a lot in that sense, मेरे घर में उस समय हर व्यक्ति को। उसके बाद अग्निहोत्र के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, लास्ट में आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि अग्निहोत्रा इज़ द वंडर वेपन इन योर हैंड व्हिच इज़ गिवन बाय गॉड, और ये हमें उस ईश्वर शक्ति का मनुष्य जाति के लिए ये वरदान है, जो कि एक पहला अंग है सत्य सनातन धर्म का, जिसको कि
श्रीमान माधव जी पोद्दार साहब ने इसका पुनरुज्जीवन का कार्य किया, अग्निहोत्र को जैसी विधि को, महान विधि को एक इस फॉर्म में कि हर व्यक्ति, हर बच्चा कर सके, उसको अपने घर में परफॉर्म कर सके, ये हमें दिया ईश्वर शक्ति के वरदान के रूप में। इसके लिए हम श्री साहब के भी बहुत आभारी हैं और ईश्वर के तो हैं ही, और इसका कोई विकल्प नहीं है अग्निहोत्र का। अग्निहोत्र को जन-जन को, घर-घर को अपनाना ही होगा। जो आज की परिस्थिति, वातावरण हम देख रहे हैं, आज का हम हेल्थ के चैलेंजेस हम देख रहे हैं, वातावरण के जो चैलेंजेस देख रहे हैं, उन सबको रहते हुए हमें अग्निहोत्र करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Dr. Shruti. It has जी been a सर। privilege to listen to you. It was very, very beautifully presented by you, Didi. Didi, there थैंक are यू सो some मच सर। questions. Ji, there यस। are some questions which I have received on WhatsApp, जी, जी and सर। there was a question here in the chat also. एक तो ये कि कोई अगर एस्थमा का पेशेंट है तो उस पे अग्निहोत्र का क्या इफेक्ट है, पहला। दूसरा ये जो मैंने रिसीव किया व्हाट्सएप पे क्वेश्चन, किन्हीं के बच्चे को ऑटिज्म है, तो हाउ दैट चाइल्ड कैन बी टेकन केयर ऑफ बाय डूइंग अग्निहोत्र। ये दो चीजों पे कृपया थोड़ी रोशनी डालें दीदी। जी, जी सर। जहाँ तक अस्थमा की बात है सर, अस्थमा एक ऐसी हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। मीन्स आपके बॉडी के जो ट्रेकिया है उसकी, या कहेंगे सांस की नली है, उसकी म्यूकोजा की टेंडेंसी होती है किसी पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर से स्टिमुलेट होके स्पाज्म में जाने की। तो हम उस चीज को तो नहीं रोक सकते बिकॉज दैट इज जेनेटिक डिफेक्ट इन द बॉडी। वो उस पर्टिकुलर चीज से एक्सपोजर होगी तो ब्रोंकोस्पाज्म में जाएगी। बट मैंने जैसे कि बताया कि अस्थमा के पेशेंट भी अग्निहोत्र में बहुत अच्छा रिलीफ महसूस करते हैं। उनके जो एक्यूट एपिसोड्स होते हैं, अस्थमा जो होता है उसका एक्यूट एपिसोड मतलब जब बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, 2-2 3-3 बार पफ लेने पड़ते हैं और दिन में स्टेरॉइड्स भी उनको ओरल और ये स्टार्ट करना पड़ता है। तो वो जो एक्यूट एपिसोड्स की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है। मतलब अगर उसको साल में या महीने में कहूँ मैं, अगर 4 बार अगर आते हैं तो उसको 1 बार आएगा, हो सकता है ना आए। अस्थमा किसी-किसी का 5 टू 10% में जड़ से भी खत्म हुआ है। उसका रीज़न क्या है ना सर, कि जो इसकी म्यूकोज़ा होती है, उसमें जेनेटिकली प्रॉब्लम तो है, बट आप जब अग्निहोत्र करते हो, उसके निर्धूम गैसेस को, मैं धुएँ की बात नहीं कर रही, जब अग्निहोत्र का पात्र जलता है, अगर अस्थमैटिक है, सीओपीडी है, तो वो पात्र को बाहर रखें। जब उसका पूरा धुआँ ब्लैक वाला निकल जाता है, तब उसकी निर्धूम जब अग्नि हो जाती है, आप उसको अपने लाइए, अग्निहोत्र की आहुति दीजिए। और अस्थमा का पेशेंट हो, सीओपीडी का पेशेंट हो, उसके सारे लंग्स के रिजर्व वॉल्यूम में इम्प्रूवमेंट होता है, उसके अस्थमा के एपिसोड्स कम होते हैं, उसकी ड्रग रिक्वायरमेंट कम होती है और पेशेंट को एक वेल बीइंग की फीलिंग अस्थमैटिक पेशेंट्स को आती है। और किसी-किसी पेशेंट का अस्थमा भी ठीक होता है, बशर्ते आप उसमें धुएँ का एक्सपोज़र ना लें, अगर आपको धुएँ से एलर्जी होती है तो। अग्नि निर्धूम होनी चाहिए, निर्धूम अग्नि में आप गाय के घी और चावल से आहुति दीजिए और उन गैसेस को इन्हेल एक्सहेल करिए, आपको डेफिनिटली बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। ये तो अस्थमा के बारे में है सर। दूसरा है, आप ट्रीटमेंट कुछ बंद नहीं करें, क्योंकि ट्रीटमेंट क्या होता है, आपकी सिवियरिटी आई कैन नॉट असेस फ्रॉम हियर, आपकी एज फैक्टर क्या है, वो सब चीज़ें मुझे देखनी पड़ेंगी। पर कोई भी एज ग्रुप के आप हों, निर्धूम अग्नि में अग्निहोत्र कीजिए और उसका दीर्घ श्वसन करने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि अग्निहोत्र के बाद भी आप 5-10 मिनट वहाँ बैठें, क्योंकि 15 से 20 मिनट तक उसका इफ़ेक्ट रहता है, तो आपको डेफिनिटली आपके स्वास्थ्य में बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा। दूसरी प्रॉब्लम जो ऑटिज़्म की मैंने बताई, ऑटिज़्म एक एक प्रकार की न्यूरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर है। बच्चा बोलता नहीं है। उसका रीज़न ये है कि कई बच्चों में डिफेक्ट, कई सिंड्रोम का पार्ट होता है। कभी-कभी बच्चे के अंदर कुछ ऐसा जेनेटिक डिफेक्ट है जिसमें उसके एज़ अ पार्ट वो अगर ऑटिज़्म है, तो उस पूरे सिंड्रोम को हम नहीं क्यूरीफाई कर सकते हैं। पर ऑटिज़्म में बच्चे बोलना चालू करते हैं। हमारे ही एक साउथ की हमारी एक अग्निहोत्र प्रचारक हैं, उनका बेटा राम था उसका नाम, और ही वाज़ वो इतना हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर था, जो एक होता है ना हाइपर एक्टिव सिंड्रोम होता है सर बच्चों में। तो हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के कारण वो बच्चे इतने एक्टिव होते हैं कि दे कैन नॉट टॉक। वो एक बात पे कॉन्सन्ट्रेट ही नहीं कर पाते, एक शब्द पे नहीं कर पाते। तो अग्निहोत्र उनको कॉन्सन्ट्रेशन पावर देता है
और जब उन्होंने स्पीच थेरेपी के साथ में अग्निहोत्र के वातावरण में उसको रखा, तो वो बच्चा इतना बढ़िया बात करने लगा, इतना बढ़िया उसका परफॉर्मेंस आ गया, क्योंकि ये सब बच्चों के आईक्यू लेवल सर बहुत हाई होते हैं, है ना? और जब ये कंसंट्रेशन करके एक डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को लगाना सीख जाते हैं, अपने मानसिक उनके जो उनके दिमाग के अंदर जो भी डिफेक्ट्स हैं, जब वो धीरे-धीरे ठीक होने लगते हैं, उनकी सर्केडियन रिदम रेगुलर होने लगती है, उनके ब्रेन में जो हार्मोन्स नहीं हैं, वो सिक्रीट्स होने लग जाते हैं, तो वो उस चीज़ से निकलने में बहुत उनको बेनिफिट देता है। तो ऑटिज़्म में भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव है, आप अग्निहोत्र करें, बच्चे को वहाँ रेगुलर बिठाएँ और उसको वहाँ पे कोशिश करें कि वो थोड़ा मेडिटेशन वहाँ कर सके। आप जो स्पीच थेरेपी उसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, उसे रेगुलर रखें, आपको प्रभाव ज़्यादा मिलेगा और जल्दी मिलेगा अग्निहोत्र के वातावरण में। जी सर। डॉक्टर श्रुति, जी दीदी सर। ये एक और चीज जैसे चैट पे आ रही है बार बार कि अग्निहोत्र भस्म से क्या आंखों की रोशनी को ठीक किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है? इस पर भी क्या आप रोशनी डाल पाएंगे प्लीज? The eyesight can be improved by the Agnihotra Bhasma if at all it is possible, and how? एक्चुअली आईसाइट जाने के कई टाइप्स होते हैं। वी कैन नॉट जनरलाइज वन थिंग। हाइपरमेट्रोपिया है, मायोपिया है उनको, उनका आई बॉल का साइज बड़ा है, या एज रिलेटेड गई है, या ट्रोमा हुआ है आंखों में। तो किस तरह के कारण से अगर आईसाइट गई है, अगर किसी डैमेज के कारण, ट्रोमा से या इस तरीके से आईसाइट गई है, तो उसको तो अग्निहोत्र नहीं ठीक कर पाएगा। पर अगर उसके आईसाइट के जाने का कोई ऐसा रीजन है जिसके कारण, जो कि एक रिवर्सिबल कॉज है, तो उसके लिए आई ड्रॉप बेनिफिशियल हैं। आई ड्रॉप्स जो हैं सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको करते हैं आउटर आईज के जो पार्ट है, जैसे कंजंक्टिवाइटिस जो हम लोगों को होती है, स्प्रिंग कटार जो अभी इस सीजन में आप जब ठंड और गर्मी के बीच में आएंगे तो स्प्रिंग कटार होता है, जो और टाइप के कंजंक्टिवाइटिस होते हैं, जो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होती है, तो उन सबको ये ठीक करता है। कैटरेक्ट वाले पोर्शन को ये ठीक इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो लेंस का डिफेक्ट है, और लेंस हमारे कॉर्निया के पीछे होता है, वहां तक आई ड्रॉप्स का इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता। पूरे बैरियर्स आईज के चारों तरफ होते हैं, आप वही चीज उसमें डालेंगे, वो एक लेवल तक अब्सॉर्ब होगी, उसके लिए वी हैव टू ओपन दैट चेम्बर एंड डू द ऑपरेशन फॉर दैट। सो आईसाइट का जाने का रीजन क्या है, वेदर इट इज कैटरेक्ट, वेदर इट इज समथिंग एल्स, तो अगर हमारा इरिवर्सिबल कॉज है, तो वो डेफिनेटली आई ड्रॉप से बेनिफिशियल होता है। और आई ड्रॉप के लिए मैं एक और वो कहूंगी कि जब हम गर्मी में से बाहर से आते हैं, आप आँखों में अग्निहोत्र आई ड्रॉप डालते हैं, तो उसके बाद आपको बहुत सूदिंग लगता है। और स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जिनमें ड्राई आई हो जाती है, तो जैसे हम टीयर्स यूज़ करते हैं, तो अग्निहोत्र ड्रॉप भी वी कैन यूज़ इन दैट फॉर्म। डॉक्टर श्रुति, और क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास। बोलिए, बोलिए मैडम। एक पर्सन है, उनको 40% फाइब्रॉइड्स हैं लंग्स में, फाइब्रोसिस आई थिंक। तो 40% फाइब्रोसिस, 40% लंग्स डैमेज्ड हैं, तो कैसे हम अग्निहोत्र से उनको हेल्प कर सकते हैं? ये मैडम स्पेसिफिक कर सकते हैं कि फाइब्रोसिस ड्यू टू व्हाट, मतलब पोस्ट कोविड है, या फिर इनको लंग्स की मतलब कोई डिजीज है? चिराग जी, इफ यू आर ऑन, लाइक आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मेरे पास पर्सनल चैट पे मैसेज आया हुआ था। One second. It is 40% interstitial disease, idiopathic. जो केमिकल से या कबूतर के रजकन से जो हुआ है। अच्छा, ये सर इट इज प्रूवन, आपका एचआरसीटी है उसमें, इज इट प्रूवन दैट फाइब्रोसिस इज देयर? It is proven. हनीकॉम्ब टाइप का हो गया ओके है। सर, जैसे मैंने बताया था, अग्निहोत्र करने से अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है। वो मैंने इस सेंस में बताया कि जब हम अग्निहोत्र की गैसेस को अंदर लेते हैं, रोकते हैं, तो हमारे जितने भी बचे, अगर डैमेज हो गया है कोई पार्ट, फाइब्रोसिस हो गया है, मतलब वो डैमेज हो चुका है सर, है ना? दैट इज द हीलिंग हमारे बॉडी में हो चुकी है। तो फाइब्रोसिस वाला हिस्सा लंग्स का ना इन्फ्लेट नहीं होता है। तो आपका अगर 60% लंग है, तो अगर आप रेगुलर अग्निहोत्र के साथ प्राणायाम करते हैं, तो उसमें आपको जो 60% की एफिशिएंसी है, दैट कैन मेक अप टू योर 80 to 90% कैपेसिटी ऑफ लंग।
Okay. But 40% fibrosis you cannot revert because that is damaged part of your lung. And second thing कि हमारे लंग्स में इतनी रिजर्व कैपेसिटी होती है कि हम अपनी लंग्स की क्षमता का 1/4 यूज करते हैं नॉर्मली. तो 40% अगर आपका डैमेज भी हुआ है तो 60% भी आपके बॉडी के लिए बहुत इनफ है. बशर्ते आप उस 60% को मेंटेन करके रखें, प्राणायाम करें, अग्निहोत्र के वातावरण में हमेशा रहें और निर्धूम अग्नि जैसा मैंने बताया उसके साथ अग्निहोत्र करें और थोड़ा सा होल्ड करके ब्रेथ होल्डिंग जिसको बोलते हैं वो आप करें तो आपको डेफिनेटली उसमें इम्प्रूवमेंट मिलेगा सर. Madam, can you please repeat about this Nirdhum Agnihatra, please? निर्धूम का मतलब ये है कि सर जब हम अग्निहोत्र के कंडे लगाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, ब्लैक धुआं निकलता है. हालांकि वो धुआं बहुत इफेक्टिव है, वो भी बैक्टीरियासाइडल है, वो भी आपके वातावरण को शुद्ध करता है. उसके अंदर भी सारे वो गुण हैं क्योंकि वो कंडा जल रहा है तो उसमें से फॉर्मेलिन तो है ही उसमें. बट जब आप किसी को जैसे सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स का पेशेंट है, अस्थमा का पेशेंट, दे कैन मे प्रेसिपिटेट सम अस्थमैटिक अटैक और व्हाटएवर. तो हम नहीं चाहेंगे कि वो शुद्ध भी है बट उसके लिए नहीं है, उसके लिए हानिकारक है अगर मान लीजिए. तो हम चाहेंगे कि उसको आप बाहर रख लें, अपने बरामदे में रख लें अग्नि पात्र को. और जब 10 मिनट पहले आप कंडे लगाते हैं तब बाहर रख दें. जब 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले जब आपको अग्निहोत्र करना है उस जगह पे, उस जगह की सफाई करके वहां अग्निहोत्र पात्र को लाएं तो उसमें से जो मेजर क्वांटिटी का जो धुआं है वो निकल जाता है. तो जो अग्नि होती है उसमें धुआं नहीं होता, अग्नि होती है और थोड़ा बहुत धुआं होता है. तो आप कोशिश करें कि अग्निहोत्र ऐसे पात्र में करें, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो थोड़े ज्यादा हैं. तो उसे सर निर्धूम अग्नि कहते हैं. Okay, thank उसमें you very धुआं much. नहीं है. जी. Okay, thank you. Thank you so much, Didi. It has been a pleasure. वेलकम सर. And this is not from outside. This is internally. This is a blessing that we have so many very good people. Namrata and Pooja are bringing, and it is a pleasure. We have Shri Ravindra Jaju also. I can see him. So मैं प्रणाम करता हूं और अभिवादन करके आपका भी स्वागत करता हूं. आप प्रणेता रहे हैं अग्निहोत्र के. तो मेरा एक प्रश्न आपसे भी रहेगा. आज ये ऐसा हुआ है, मैं ये दिखाना चाहूंगा. ये जो जल तो गया है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा टुकड़ा नहीं जला है. ऐसा कई बार नहीं होता है, कई बार होता है. ये पूरा नहीं भस्म जला, क्योंकि 20 से 30 मिनट में ये पूरा भस्म हो चुका होता है. और ये संदेश भी रहता है कि हमारा मृत्यु लोक का हम वासी हैं हम, और ये मरना ही ऐसा भस्म हमको भी बनना है. शरीर जल ही जाने वाला है, तो इतना व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से अटैचमेंट रहता नहीं है. पर ये ऐसा जब जल के पूरा थोड़ा सा टुकड़ा बचा है, तो क्या ये भस्म कारगर है? क्या इसका क्या करना चाहिए? इस पे कृपया रोशनी डालें. जैसे आपका सभी महानुभावों का नमस्कार. डॉक्टर श्रुति जी, आपको भी प्रणाम. बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने. नमस्कार सर. बढ़िया. मुझे बहुत अच्छा लगा आप जो पूरी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे, आप जो एग्जांपल्स दे रही थी और आप जो बता रही थे बारीक बातें. आई रियली अप्रिशिएट. बहुत अच्छा कहा आपने. अभी जो भस्म की बात जो प्रियरंजन जी ने कही है, ऐसा अगर आपका कंडा बचता है कई बार, मुझे हफ्ते में एक बार भी अगर ऐसा बचता है, इसका मतलब अगर कठोरता से कहे, आपका अग्नि कई बार तो नहीं बचता, 100 दिन में एक दिन समझ लीजिए. नहीं, लेकिन सबके लिए हो जाइए. ठीक है. कोई इसमें अग्निहोत्र की सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई गलत नहीं है. क्या आप किसी चीज का अवडंबर मत करिए. कभी 100 दिन में एक बार बचता है तो ठीक है, लेकिन नहीं बचे इसकी फिक्र करिए. आप नेक्स्ट टाइम देखिए, ध्यान दें कि ऐसा ना हुए. वो अग्नि अगर आपने ढंग से जलाया है और पर्याप्त मात्रा में गोबर इस्तेमाल किया है, ऐसा कुछ बचेगा नहीं. क्या हमारा मतलब गए 5 साल में 10 साल में एक बार भी नहीं बचा है, समझो क्या. तो लेकिन ये होता है, इट्स मैटर ऑफ प्रैक्टिस. हर एक का अपना अपना ये है. और धीरे धीरे अग्नि थोड़ा सा अगर ज्यादा जलाता, आप दिल्ली वाले को कंडा की कोताही होने के कारण आप थोड़ा कंडे में चिंगू से करते हो, थोड़ी सी उसमें थोड़ा उसका हिसाब लगाते हो. आज क्षमा प्रार्थी हूँ. आज मेरे पास केवल 2 ही टुकड़े बचे थे. तो क्षमा प्रार्थी हूँ. ये बात नहीं, क्षमा प्रार्थी मुझसे मत हुई है, उस परमात्मा से हुई है. हमें भोजन के लिए अगर एक रोटी कम बनी होती है, हम परेशान हो जाते हैं.
बिल्कुल परेशान हो जा रहे, आज खाना पूरा नहीं था, खाना कम हुआ, मुझे खाना पेट भर के नहीं मिला है। वैसे उस परमात्मा को देते हुए हम कम नहीं होना, इसकी फिक्र पहले से करनी चाहिए। लेकिन लेट इट बी व्हाट इट इज, आज थोड़ा सा उपवास हो गया, नेक्स्ट टाइम अच्छा सा करिए, कोई चिंता नहीं है? इस भस्म का जो अभी ऐसा है, इसका कैसे, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। आप डॉक्टर श्रुति जी से पूछ रहे हो, हमसे पूछ रहे हो? आप ही से पूछ रहा हूँ इन कंटिन्यूएशन। डॉक्टर, भस्म का जो उपयोग है, भस्म के उपयोग के बारे में आप डॉक्टर श्रुति जी ने बहुत सारी बातें बताई। बेसिकली सोना जो है अग्निहोत्र से निकलता है। अग्निहोत्र करने से 1000 कम से कम 1000 प्रकार की चीजें, घटनाएं, ऊर्जाएं, क्षमताएं अपने पूरे परिवार में प्रवाहित होती है। अब जो भस्म जो नीचे रहा, ये रेसिड्यू है, ये शिल्लक है, ये बचा हुआ है, ये सब होने प्रक्रिया होने के बाद बचे हुआ बॉटम का है, लेकिन वो भी इतना शक्तिशाली है जिसकी लिमिट नहीं। आप उसका इस्तेमाल, जैसे अभी श्रुति दीदी ने बताया, वैसे कई चीजों में आप उसको कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहली बात जो श्रुति जी ने बताई, वो सबसे पहली बात है कि अग्निहोत्र डट के करिए, और अग्निहोत्र करने के बाद वहां पर जितना हो सके आप दीर्घ श्वसन करिए, जितनी हो सके लंबी सांस खींचिए, जितनी हो सके लंबी सांस छोड़िए। हम डेली अग्निहोत्र के बाद सुदर्शन क्रिया करते हैं, डेली पता है हमारा, अग्निहोत्र होता है सीधे हमारे हाथ कमर के ऊपर चले जाते हैं, और कमर, फिर कांख, फिर पीठ, फिर भस्त्रिका, और फिर क्रिया, ये तय है पक्का। ये अपने आप में अद्भुत है। ये अगर कोई करता है तो उसकी जो दवाइयों को रिस्पॉन्ड करने की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमता, इसमें गुणित रूप में प्रभाव पड़ता है, मतलब कई गुना बढ़ जाएगी आपकी क्षमता है। तो इट्स समथिंग अमेजिंग। क्या यही बात दोबारा फिर से बताई जा रही है कि सबसे पहले अपना स्वयं का अग्निहोत्र कठोरता से करने का प्रयास करिए। मैं हरदम कहता हूं, अग्निहोत्र समझने के लिए नसीब चाहिए, अग्निहोत्र करने की इच्छा होने के लिए और नसीब वाले चाहिए, कुछ दिन अग्निहोत्र करने के लिए आप और नसीबवान चाहिए, और पूरी जिंदगी अग्निहोत्र निश्चित रूप से नियमितता से करने के लिए आप परम भाग्यशाली चाहिए। तभी आप कर पाएंगे, आपके ऊपर उस परमात्मा का, वो परम सदगुरु गजानन महाराज जी का आशीर्वाद है, तभी आप ये कर पाओगे, अन्यथा करना मुश्किल है। ये भगवान परशुराम जी ने दी हुई अद्भुत विधि है। आप इसको हर हफ्ते में, ये जो पूजा दीदी, नम्रता दीदी, प्रियरंजन जी पूरी मेहनत करके करते हैं, ये एक बहुत युग प्रवर्तक काम के आप हम एक छोटे से हिस्सा बन रहे हैं। पता नहीं उस किताब में जब नाम लिखा जाएगा, हमारा नाम लिखा जाएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन उस गिलहरी ने जो 4 छींटे डाली थी, और 4 छींटों में से एक तो भी छींट हमारी होगी, ये बात पक्की है। आज के इस अमेजिंग सेशन के लिए साधुवाद। श्री रविंद्र जाजू, डॉक्टर श्रुति, आपने बहुत प्यार से Thank you, बताया, एंड इट वाज रियली रिमार्केबल। पीपल से, अरे डॉक्टर्स तो नहीं करते होंगे, जो साइंटिस्ट हैं वो तो नहीं करेंगे, आप लोग कर लेते हो। सर तो मैं एक ऐड करना चाहूंगी, एक लाइन। इसमें मैं चैट बॉक्स में पढ़ रही थी कई लोगों के डाउट्स, तो उसमें जो 2 डाउट्स और थे कि मेंटल डिजीज साइकोसोमैटिक इफेक्ट में इसका प्रयोग है, इसका इफेक्ट है क्या? तो डेफिनेटली है। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर हो चाहे मेंटल डिसऑर्डर हो, हर एक में अग्निहोत्र का एक बहुत अच्छा प्रभाव है, ये आप खुद अनुभव करके देख सकते हैं। और जाजू जी ने जैसे बताया, उसके संदर्भ में मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि ये एक ईश्वरीय कृति है सर, और ईश्वरीय कृति को जब सेवा भाव से किया जाता है तो उसमें कोई साइंस फॉलो नहीं होता। और उस सेवा भाव से, जब आपने, जैसे आपने ही शुरू में बताया था कि जो इदम न मम की भावना है, जिसके जीवन में इदम न मम का भाव आ जाता है, जो देने की ये प्रवृत्ति इदम न मम की हमें रोज अग्निहोत्र याद दिलाता है कि ये मेरा कुछ नहीं है, इसमें से ईश्वर जो आपने दिया है, सब कुछ आपको समर्पित है, आपका है और आपको समर्पित है। तो हमें ये रोज की, जो रोजमर्रा की जिंदगी है जिसमें कि भागा दौड़ में हम सब लगे हैं, हम तो लगे ही हैं तो अग्निहोत्र हमें वो रोज याद दिलाता है दोनों समय
कि हमें इदम न मम का भाव जागृत करना है। और सेवा भाव से जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो उसका बॉडी पे इफेक्ट होता है, जिसका साइंस अभी मेडिकल साइंस उसका 10% जानता है सर। उसके आगे बहुत कुछ है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया। उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। Thank you so Thank you much. so Didi. much. Thank you is a very small word for you. Thank you so much. We are very, very grateful. अंत करूंगा आज के सेशन का, सबसे अनुमति आज्ञा लूंगा और अंत इसी बात से करूंगा कि सच में कठोरता से करने के लिए सौभाग्य चाहिए, परम सौभाग्य, अहोभाग्य चाहिए। और इनफैक्ट इन 2003 रविंद्र जाजू जी वॉज इन दिल्ली और मुझे उनके पास करोल बाग जाना था। Just a small story I'm sharing, just to inspire, not to boast of. Everyone may get inspired. And I was not having any car at that time. I was a student. So I was having, मेरे पास हीरो होंडा पैशन हुआ करती थी पुरानी वाली। तो अभी तो गाड़ी में कैसे रख के कर लेते हैं, सब कुछ है। उस समय स्टूडेंट लाइफ में तो भावना अंदर की थी। तो रविंद्र जाजू जी ने एक टाइम दिया था, अग्निहोत्र के टाइम से पहले आ जाना। अग्निहोत्र का टाइम तो हो चुका, अब क्या करूं? वहां पहुंच नहीं सकता, अग्निहोत्र छोड़ नहीं सकता, नित्य कर्म है, पूर्णाहुति तो है नहीं, तो क्या करूं? एक ईंट लेके चलता था, ईंट रखी, अग्निहोत्र पात्र रखा, देसी गोवंश के उपले कंडे गोइठा पाती निकाल के, देसी घी निकाल के और पूर्ण चावल लेके उसी समय सर्विस रोड पे लेके, सर्विस लेन पे लेके अग्निहोत्र शुरू कर दिया। ट्रैफिक वाले आ गए, भैया क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ अद्भुत हो रहा है, 5 मिनट बाद आपसे बात करूंगा, अभी थोड़ा विराम ले। तो वो बड़ा कौतूहल था उनको, ये कुछ ठीक तो कर रहा है, मतलब सही है, पर इससे कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। उसको बाद में पूरा बताया, सब कुछ अग्निहोत्र का समझा के। तो ये सौभाग्य हम लोगों को मिला है कि अटूट रहा है, किसी भी दिन नहीं भी हो पाया है विधिवत, साल 2 साल 3 साल 4 साल में एक बार, वो भी कभी तब जब आर्ट ऑफ लिविंग का शिविर ले रहे हैं, सुदर्शन क्रिया करा रहे हैं, तो उस बीच समय नहीं मिला, तो उस बीच में मनन करके कि हे सूर्य भगवान, अंतर मन से आपको याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ, आपका बच्चा हूँ, क्षमा करके मेरी मानसिक तो आप स्वीकार करो। मन में अग्नये स्वाहा अग्नये इदं न मम, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं न मम। तो हमारा नित्य निरंतर चलता रहे और हम लोग सब जुड़ते रहे। प्रत्येक शनिवार को 8:30 से 9:30 हम लोग जुड़ते हैं और कोई ना कोई एक्सपर्ट हमारे पास आते हैं, अपना सेवा करते हैं, ज्ञान हमारे साथ शेयर करते हैं। अगले सैटरडे शनिवार को भी फिर मिलेंगे 8:30 से 9:30। इस बीच नम्रता को, पूजा को, मुझे आप पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस हो। आई थिंक पूजा इज हियर, सो आई विल टेल हर टू एंड दिस प्रोग्राम। वंदे मातरम। एवरीबॉडी, डॉक्टर श्रुति, मैं आपको थोड़ा सा सुन पाई बीच में, सॉरी, I had to miss your session, but I will certainly see the recording. But मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बीच में। मैडम, I am always ready. Anytime you can ask me. मैं पूजा, मेरा नाम मैडम नहीं है, प्लीज। Pooja ji, anytime you can ask me. My contact number is there with the Namrata. Yeah, I have your contact number. I have. मैंने थोड़ा सा कोशिश तो रहती है कि अग्निहोत्र की और इस जो जहाँ पे भी कर सकें, जहाँ समय मिल सके, बिल्कुल प्रचार होता रहे और जो चीज हमें बेनिफिट देती है वो सबको दे, सब उसका फायदा उठाएं। एस्पेक्ट्स हैं अग्निहोत्र के, हर हफ्ते हम देखते समझते हैं। आज वी हैड टू हियर फ्रॉम अ डॉक्टर, एलोपैथ, मतलब यही लगता है कि साइंटिस्ट, मतलब डू दे बिलीव इन अग्निहोत्र, एंड द वे यू वर टेलिंग, I could have a little glimpse of it, but the way you were telling every aspect, it is wonderful. I believe everybody would have benefited from it. Really, thank you. हमारी और हमारी टीम की तरफ से सबकी तरफ से प्लीज थैंक यू। बहुत ही बढ़िया मजेदार सेशन। वेलकम मैडम, वेलकम। Yes, Shruti ji, a big thanks from all of us. I would like to add here, हम ना यहाँ पे हमारा इंटेंट ये है कि और ज्यादा से ज्यादा लोग इसके सारे एस्पेक्ट्स को सुने, जाने और अग्निहोत्र स्टार्ट करें। On 12th March in Delhi, we are having a session. People can join online also. 12th March evening Agnihotra will be doing together. ठीक है, तो तब तक हम उसके बाद भी करते रहेंगे, कंटिन्यूस सेशंस हैं।
एक चीज और ऐड करूंगी मैडम, बस एक 2 मिनट एक लाइन के लिए। 22 फरवरी जो है विश्व अग्निहोत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, और हम ये कोशिश करें कि 22 फरवरी को सभी लोग कुछ न कुछ अपने जगह पर अग्निहोत्र के बारे में लोगों को जानकारी दें। अग्निहोत्र के विषय में लोगों को जितनी सामूहिक अग्निहोत्र बैठ के आप लोग कर सकें और अपने-अपने अनुभव फिर बता सकें। We can have this session on 22nd Feb also. Yes, Pooja? ओके ऑनलाइन मैडम। सेशन करते हैं हम, है ना? जी 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 मैडम। मॉर्निंग इवनिंग दोनों का रख लेते हैं। We'll do online. हम शेयर करते हैं इसको, ठीक है? We'll Okay. post this. Yes, yes, yes. And this video will be uploaded on a YouTube channel so that further लोग इसको देख पाए। ठीक है? Collect all the information and post it on YouTube. Thank you so much. Thanks a lot. वंदे गोमातरम। Thank you. जय Thank you, Shruti. Thank you. Shruti, thank you. बहुत अच्छा आपने स्पीच दिया है अग्निहोत्र के बारे में। थैंक यू अगेन, थैंक यू। और सर जी थैंक यू, बाय। पूर्णिमा, पूरण, पूरण, पूर्णिमा, I'm just adding our YouTube channel is Mitti Connect, but we'll be sharing the link in our groups only. तो सभी लोग एक बार ग्रुप में ज्वाइन कर लें। इस मैसेज के एंड पे ग्रुप का लिंक है जो आपको मैसेज मिला है, ठीक है? थैंक यू एवरीवन।